Hello and very warm welcome to all of you, my dear friends. How are you all? My name is Artham Bhattacharjee and I am the head of Imperial Education. Today I am here again back to deal with some English language grammatical portions, and today our topic will be adjective. So you know what is adjective? Can you tell me what is adjective? Any idea? Okay, no problem. If you don't have any idea, I am here to tell you. So let us see what is adjective. Let us understand with some of the examples. Okay, so let us understand what is adjective. So let us have some examples here. First sentence, she is a beautiful girl. As you all know that in beautiful is an adjective because it is telling about a noun. That how is that girl? That is a beautiful girl. Next is he is a handsome boy. Again we can understand that how is the boy? He is a handsome boy. Again telling about noun. So what we can understand here is that adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Like we can say also that he is a smart boy, and who is he? He is what pronoun? So here it is telling about a he. So this is what again a pronoun. So remember dear students that adjective is what? A noun clause. It is telling about noun, that what it is telling about noun, qualify about noun. So all this word which is telling about noun, all these words are what? Adjective. And noun is also, you know that in place of noun we can also use pronoun. So pronoun, if it is coming before a pronoun also, that also becomes an adjective. Now in our next sentence we can see that I have some sugar. So it is what telling about sugar, that how much sugar we have some sugar. So this is some is what? Adjective. And more thing you can remember dear students, that word which is coming before a noun, is also an adjective because it is telling about a noun. Next, this is my book. Now book is noun, and you can see that my is coming before book. So it is what? An adjective. Now you must be asking that, sir, my is a pronoun. Yes, it is pronoun, but it is acting as an adjective because it is coming before a noun. So pronoun also becoming an adjective. This kind of words commonly known as pronominal adjective. Once this kind of thing was also asked in Patwari paper. In Patwari exam, they asked that what kind of adjective is it? So answer is pronominal adjective because it is a pronoun but acting as an adjective. That's why it becomes what? Pronominal adjective. And remember my dear students that before noun any word is coming, that becomes an adjective. Next, I don't have any friends. Any friend. So here we can say that again friend is noun. Friend, before friend we have a word that is an adjective. And here that tree is tall. So tall we know again it is telling about the quality. And that tree, again tree is what? Noun. And before noun we have a word that is what? Adjective. So clear? What is adjective? I hope that it is clear to you that what is adjective. Now we should know that there are three types of adjective also. Three degrees are there. First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So first, positive degree is used for one person, comparative degree is used for two persons, and when there is more than two persons we use superlative degree. Now we will solve some of the questions in which we will see that what are the errors in adjective that we mostly find in questions papers coming in bank exam and Patwari exams also. So let us see what are the questions that they are commonly asking in exams. So these are the questions. At first try to solve these questions. I suggest you that please do pause for a minute and check out that how many errors can you find. After that I will tell you that what are the errors in this. Okay, let us see that these are the types of adjective: positive, comparative and superlative. Positive is used for only one person when we are talking about only one person, like Ram is a strong boy. Then comparative is when we are talking about two persons and we are comparing that Ram is stronger than Shyam. Next is superlative degree, which is used for more than two persons. For example, when we are talking about Ram is the strongest boy in our class. So in a class there are more than two boys. That's why we are using what? Strongest.
one thing you need to remember that comparative degree word is always followed by than, means stronger than taller than, more intelligent than, older than. But yes, you need to remember that elder is not followed by than, it is followed by to. Then here when it comes to superlative word, remember my dear students that superlative word is always preceded by the, मतलब superlative word के पहले हम लोग को हमेशा the का यूज करना है. The strongest, the tallest, the most, the oldest and the eldest. अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं. कई लोग ये भी डिफिकल्ट होता है कि सर मोर और मोस्ट कब लगता है और कब नहीं लगता. ये चीज भी आपको मैं क्लियर करूंगा. आपको अगर पता है तो आप एक बार बताइए, कोई बात नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं. देखिए मोर और मोस्ट कब लगता है? व्हेन वी हैव वॉवेल्स मोर देन 2 टाइम्स. देखिए इंटेलिजेंट में कितना वॉवेल है? 1 2 3 4 4 वॉवेल्स है. तो जब भी 2 से ज्यादा वॉवेल किसी वर्ड में अगर यूज हुआ तो वो सारे किस में जाएंगे? मोर और मोस्ट. उसमें er और est फॉर्म नहीं लगता, उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं. ठीक है, कंपैरेटिव में मोर हो जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाएगा. किसमें? जब किसी वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवेल होगा. जैसे कि अगर 2 वॉवेल वाला वर्ड देखें तो हम देख सकते हैं वाइस 2 वॉवेल है, गुड 2 वॉवेल है. इसमें मोर और मोस्ट नहीं लगता है. वाइस, वाइसर, गुड, बेटर. और ये क्या हो जाएगा? वाइसेस्ट एंड बेस्ट. और एक चीज याद रखिए, कई लोग आजकल देखने मिलता है बेस्टेस्ट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन याद रखिए बेस्टेस्ट वर्ड कोई वर्ड होता ही नहीं है. एक्चुअल वर्ड इज बेस्ट. ये खुद सुपरलेटिव है तो इससे ज्यादा कोई सुपरलेटिव नहीं होगा. तो क्या होगा? ये द वाइसेस्ट एंड द बेस्ट और वाइसर देन एंड बेटर देन. अब आपको ये बताऊंगा कि कौन से वर्ड इसमें टू लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद देखते हैं सभी वर्ड के पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव तो है बट पॉजिटिव नहीं है. जैसे आप एल्डर में देख सकते हैं, एल्डर का कोई भी पॉजिटिव डिग्री नहीं होता. जैसे कि अगर आप बोल दोगे एल्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है. एल्डर होता है और एल्डेस्ट होता है. अब आप देख लेते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पर कि क्या आप इसमें एरर फाइंड किए हैं और क्या गलत क्या सही वो चीज हम समझेंगे. तो पहला सेंटेंस है धीरज इज मोर वाइसर देन यू. अब हम देख सकते हैं कि धीरज और यू दो जन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जो हमने वाइसर यूज किया ही है. और उसके बाद देन यूज करते हैं, वो भी हमने सही यूज किया है. लेकिन अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर मोर वाइसर, तो मोर वाइसर नहीं होता है क्योंकि जब एक कंपैरेटिव आ गया तो 2 बार कंपैरेटिव यूज करने की क्या जरूरत है? इट बिकम्स सुपरफ्लुअस. इसको कहा जाता है सुपरफ्लुअस, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए वो चीज की जरूरत नहीं पड़ती है. We should only use comparative degree once, that Dheeraj is wiser than you. Remember dear students. Now coming to the next, as a batsman Sachin is superior than Dhoni. Again यहाँ पे देखते हैं कोई गलती मिल रहा है कि as a batsman Sachin is superior than Dhoni. देख तो लग रहा है सही है, कंपैरेटिव हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. जो सुपीरियर वर्ड है उसके बाद होता है यूज टू का. अब मैं आपको बता दूं टू किसके बाद यूज होता है. तो याद रखिएगा जो वर्ड एंडिंग विथ ओ आर हो रहा है, किससे? एंडिंग विथ मतलब खत्म हो रहा है, उसके लास्ट में क्या है? ओ आर. तो वो सारे वर्ड के बाद हम लोग टीओ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं. लैटिन वर्ड्स में याद रखिएगा इनके बाद देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है. और इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये सुपीरियर जैसे वर्ड, जो वर्ड एंडिंग विथ ओ आर होते हैं, उनके आप पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है. मतलब अगर आपको बोलेगा एज अ बैट्समैन सचिन इज मोस्ट सुपीरियर टू ऑल, सबसे ज्यादा अच्छा है, ऐसा अगर बोलेगा तो गलत है, क्योंकि सुपीरियर खुद ही सुपीरियर होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो वर्ड एंडिंग विद ओ आर होते हैं वो सारे वर्ड के बाद हमेशा टू आता है. और क्या होता है? इनके पहले कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं होता है, क्योंकि इन लोग का कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता. ये खुद में सुपर कंपैरेटिव रहता है और इनके बाद टू का यूज होता है. तो ऐसे कौन से वर्ड है जिनके बाद टू का यूज होता है, वो भी आपको बता देता हूं. तो वर्ड है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, मेजर,
anterior, posterior, prior, prefer and elder, इनके बाद to का यूज होता है, याद रखिए। ऑल ऑफ दिस आर फॉलोड बाय टू, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीफर और एल्डर के बाद ओ आर नहीं है, ई आर है, लेकिन फिर भी इनके बाद टू का यूज होता है। तो ये चीज याद रखिए, ये सारे वर्ड के बाद टू का यूज होगा। इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं होगा। जो आप कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं कि ही इज सुपर मोस्ट सीनियर, ही इज मोस्ट सीनियर, इस तरह से वर्ड यूज इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। सीनियर मींस सीनियर, जूनियर मींस जूनियर, तो मोस्ट जूनियर, मोर जूनियर ऐसा वर्ड यूज नहीं होगा। और इनके बाद हमेशा क्या यूज होगा, टीओ, टू का यूज होगा, देन का यूज कभी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ऋषल इज द एल्डेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। ऋषल इज द एल्डेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास मतलब क्या है, सबसे बड़ा स्टूडेंट है। तो याद रखिए एक चीज की एल्डेस्ट की जगह यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज होगा। क्यों ऐसा होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। एल्डेस्ट जब हम बात करते हैं एल्डर या एल्डेस्ट की, है ना, तो एल्डर एंड एल्डेस्ट जो है फैमिली मेंबर्स के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। फैमिली मेंबर्स के लिए हम एल्डर एंड एल्डेस्ट यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट इन आवर क्लास, क्लास के मेंबर्स फैमिली वाले होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट किसके लिए होता है, याद रखिएगा, ये यूज होता है आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ फैमिली एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सूरज इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। सूरज इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सूरज क्या है, स्ट्रॉन्गर है, जितना वो इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब एक पर्सन की हम दो क्वालिटी की बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो याद रखिए हालांकि उसमें ई आर वाला फॉर्म आता है, फिर भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लोग यूज करते हैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। क्यों कर रहे हैं, फिर बता रिपीट कर रहा हूं, जब एक पर्सन की दो क्वालिटी की बात हो रही है कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रीना इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। इसमें कोई गलती मिल रही है? अब देखते हैं क्या हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो आते हैं, रीना इज बोथ, वो क्या है, क्लेवरर भी है और इंटेलिजेंट भी है, अपने सिस्टर्स मतलब ज्यादा है, क्लेवर भी ज्यादा है, इंटेलिजेंट भी ज्यादा है। तो कंपेयर हो रहा है, तो क्लेवरर सही है, लेकिन इंटेलिजेंट में देखिए ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री आ जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां क्या यूज होना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो यहां देखते हैं राहुल जो है स्मार्ट है, अपने एनी स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन आवर स्कूल, अपने स्कूल में किसी भी स्टूडेंट से वो ज्यादा स्मार्ट है। तो अब यहां ध्यान देने की बात है, अगर किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट है तो क्या वो खुद से भी स्मार्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान अपने से ज्यादा स्मार्ट कैसे होगा। तो यहां पर हमको समझना है कि क्या बोल रहा है, राहुल इज स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट। एनी स्टूडेंट मतलब कोई भी मतलब वो खुद भी आता है राहुल, तो ये गलत हो रहा है। याद रखिए जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं उसके बाद आप देन एनी का यूज कर रहे हैं, तो एनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय अदर देन एनी अदर स्टूडेंट इन आवर स्कूल। क्यों? क्योंकि आपने अगर एनी अदर बोल दिया मतलब कि उसको छोड़ के किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अदर यूज कर रहे हैं। सेम यहाँ एनी अदर की जगह अगर होता है ये ऑल, तो ऑल के बाद भी अदर का यूज होता। अगर एनी नहीं होता ऑल होता तो भी हम लोग अदर का ही यूज करते। अब आप लोग पहले सोचिए कि सर हम इसको सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं बना रहे, बना सकते हैं, बट लेकिन क्वेश्चन जो दिया हम उसके अकॉर्डिंग आपको एरर बता रहे हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है या स्मार्टर है। तो यहाँ अदर इस तरह की एनी अदर, या तो ऑल अदर रहता तो ऑल अदर होता, लेकिन एनी अदर के बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये भी चीज याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन है, जबकि ऑल अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। मतलब कि अगर यहाँ ऑल अदर होता तो ऑल अदर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल ये होता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका इज
the wisest of all other students in our school। अब यहाँ देख सकते हैं आप हम लोग के स्कूल में इसको क्या बोल रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है, उसके पहले द भी है, सही है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये चीज याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जो पर्सन की बात कर रहे हैं उसको इंक्लूड करके बोलते हैं कि सभी में से जो सबसे ज्यादा वाइसेस्ट है वो कौन है, प्रियंका है। तो सभी में से ना और अदर की बात नहीं होगी, तो याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का यूज नहीं होता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। और भी हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो को उतना ही हमें खुशी होगा कि आपके लिए और वीडियोस लेकर आए और आपको पसंद आ रहा है। सो टिल देन टेक केयर, सी यू सून अगेन, थैंक यू।